یہ داستان ہے سورہ الکافرون کی، یعنی ایمان کے بغاوت کی۔ سورہ الکافرون۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی وادیوں میں توحید کی صدا گونجنے لگی تھی۔ کفار نے اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ بول بلال بول کہ لات اور عزا خدا ہیں، ورنہ آج تیری لاش اسی ریت پر سڑے گی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ تم اور تمہارا یہ جھوٹا دین مجھے گوارا نہیں، تم جہنم کے راستے پر خوش رہو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ گھبراؤ مت، اس نے ابھی جو نہ کہا ہے وہ تو صرف آج کے لیے ہے۔ میری مانو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو کلام میں نے سنا ہے وہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس دن مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو دولت اور طاقت کے نشے میں آئے تھے، وہ قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ کے آگے ہار گئے۔ مکہ کی فضاؤں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ قریش کے سب سے بڑے سردار ولید، عاص اور امیہ ایک سمجھوتا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اے محمد، کیوں اپنوں سے جھگڑا کرتے ہو؟ ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیں گے، تم جو مانگو گے تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دولت اور طاقت کا یہ آفر بہت شاندار تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری سازش چھپی تھی۔ انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ بس ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور بدلے میں 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ ظاہری طور پر یہ ایک امن کا سمجھوتا اور برابری کا سودا لگ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور سردار جواب کے لیے دباؤ بنا رہے تھے۔ مان جاؤ محمد، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، تھوڑا تم جھکو، تھوڑا ہم جھکتے ہیں۔ لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان نہیں کھولی، بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے خود دخل دیا اور وہ فیصلہ سنایا جس نے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ یہ داستان ہے سورہ الکافرون کی، یعنی ایمان کے بغاوت کی۔ سورہ الکافرون۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی وادیوں میں توحید کی صدا گونجنے لگی تھی۔ کفار نے اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ بول بلال بول کہ لات اور عزا خدا ہیں، ورنہ آج تیری لاش اسی ریت پر سڑے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک دانا پانی اور ملنا جلنا بند کیا، لیکن ظلم کی ہر آندھی ایمان کے چراغ کے سامنے بے بس ہو گئی۔ جب طاقت سے بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنی ترکیب بدلی۔ انہوں نے قریش کے سب سے عقل مند اور باتوں کے جادوگر سردار عتبہ بن ربیعہ کو اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہیں یقین تھا کہ عتبہ اپنی لچھےدار باتوں سے انہیں منا لے گا۔ اے میرے بھتیجے، اگر تم یہ سب دولت کے لیے کر رہے ہو تو ہم تمہیں مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ یہاں عتبہ نے بھتیجے کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا۔ عرب کلچر میں یہ پیار جتانے اور رشتہ داری کا واسطہ دینے کا طریقہ تھا تاکہ وہ جذباتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم کر سکے۔ لیکن جواب میں اللہ کے رسول نے کوئی بحث نہیں کی، بس قرآن کی چند آیتیں سورہ فصلت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑھ دی۔ وہ الفاظ عتبہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ سردار جو نبی کو خریدنے گیا تھا، وہ پسینے پسینے ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ ارے عتبہ، تم گئے تھے اسے اپنے رنگ میں رنگنے، لیکن لگتا ہے تم خود اس کا رنگ چڑھوا کر آئے ہو۔ میری مانو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو کلام میں نے سنا ہے وہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ عتبہ کی یہ بات سن کر باقی سردار بوکھلا گئے۔ انہیں لگا کہ اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے۔ اپنی ناکامی اور ڈر کو چھپانے کے لیے کفار کے 4 سب سے شاطر دماغ دار الندوہ میں سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے ایک ایسا خطرناک پلان تیار کیا کہ شاید دولت کی چمک سے وہ نبی کے ارادوں کو خرید لیں گے۔ یاد رکھو، ہم اس سے جنگ نہیں کرنے جا رہے، ہم اسے راضی کرنے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، بس ہمیں اس کی کمزوری پکڑنی ہے۔ تبھی دوسرے سردار نے اپنی بات میں ایک اور لالچ جوڑ دیا۔ اگر اسے سرداری چاہیے
तो हम उसे अपना आका मान लेंगे, और अगर उसे मालो दौलत चाहिए तो मक्का का सारा सोना उसके कदमों में ढेर कर देंगे। हाँ, लेकिन शर्त सिर्फ एक होगी कि वो हमारे भूतों की बुराई करना छोड़ दे और हमारे दीन में थोड़ी नरमी दिखाए। इस तजवीज को लेकर ये पूरा वफद पूरी तैयारी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उन्हें अपनी दुनियावी ताकत पर इतना गुरूर था कि उन्हें लगा आज शाम तक इस दीन का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लालच का एक अक्स भी नहीं देखा तो उन्होंने अपना आखिरी और सबसे जहरीला पत्ता फेंका। वो था ईमान का सौदा। ए मोहम्मद, चलो एक समझौता कर लेते हैं। 1 साल हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे और बदले में सिर्फ 1 साल तुम हमारे माबूदों को पूज लो, ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तौहीद की जड़ पर सीधा वार था। सरदार जवाब के इंतजार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें लगा शायद हाँ हो जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते थे। वो तो अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। और फिर खामोशी टूटी, लेकिन किसी आम जवाब से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले कुरान की आयतों के साथ। तो दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों की आंखों में आंखें डालकर अल्लाह का वो पैगाम सुनाना शुरू किया, जिसके हर लफ्ज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसके पहले अल्फाज ही सरदारों को हिलाकर रख देते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। भाईजान, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने शुरुआत ही कुल यानी कह दीजिए से की। ये लफ्ज इस बात का सबूत है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह का जलाली हुक्म है। और फिर उन्हें काफिरून कहकर पुकारा। आमतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से ए मेरी कौम कहकर नरमी से बात करते थे, लेकिन यहाँ अल्लाह ने सारी मुरव्वत खत्म कर दी। उन सरदारों को उनके ओहदे या नाम से नहीं पुकारा गया, बल्कि उनकी असली हकीकत बताई गई। ये अंदाजे तखातुब उन मगरूर सरदारों के मुंह पर एक दंदान शिकन जवाब था। उन्हें पहली ही लाइन में बता दिया गया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं, तुम सिर्फ हक का इनकार करने वाले हो। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने यही लफ्ज क्यों चुना? इसे हम इस तरीके से और बेहतर समझ सकते हैं। अरबी जुबान में उफ्र का असल मतलब होता है किसी चीज को ढांकना या छुपाना। यहाँ तक कि अरबी में किसान को भी कभी कभी काफिर कहा जाता है, क्योंकि वो बीज को मिट्टी में छुपा देता है। अल्लाह ने इन सरदारों को काफिर इसलिए कहा क्योंकि वो अनजान नहीं थे। वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन अपनी झूठी शान की मिट्टी से वो इस सच को छुपा रहे थे। इस पहली ही लाइन ने उनके नकाब उतार दिए और ईमान के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। खिताब के बाद अब बारी थी उनके उस समझौते को रद्द करने की। अल्लाह ने फरमाया, ला अबुदु मा तबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। इस आयत का सीधा मतलब तो यही है कि मैं तुम्हारे बुतों को नहीं पूछता, लेकिन इसे हम और गहराई से इस तरह समझ सकते हैं। अरबी के इस लफ्ज की ताकत को समझिए। उन सरदारों को लगा था कि शायद कोई गुंजाइश बाकी है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ ला अबुदू का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरबी कवायद के मुताबिक ये जमाना हाल है। याद है ना उन्होंने क्या कहा था? चलो एक समझौता कर लेते हैं। 1 साल हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे और बदले में सिर्फ 1 साल तुम हमारे माबूदों को पूज लो। इस साल तुम झुक जाओ, अगले साल हम झुकेंगे। तो अल्लाह ने इस आयत से उन्हें दो टूक जवाब दिया। ए काफिरों, तुम आज और अभी की बात करते हो, तो सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुम्हारे इन पत्थर के खुदाओं से अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। दीनी जुबान में इसे बरात कहते हैं, जिसका आसान मतलब है किसी चीज से अपना रिश्ता मुकम्मल तौर पर तोड़ लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मैं और ये बुत एक रास्ते पर नहीं चल सकते। यहाँ बात बिल्कुल साफ कर दी गई। तुम 1 साल के समझौते की बात करते हो, मैं तो एक पल के लिए भी
इन झूठे माबूदों की तरफ देखना गवारा नहीं करता। उनकी जो अभी झुकने की पेशकश थी वो इसी एक लाइन से रद्द हो गई। फिर अल्लाह ने उनके उस दावे का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भी तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला अंतुम आबिदूना मा अबूद, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उन सरदारों ने तो खुद कहा था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा कि तुम इबादत नहीं करोगे? इसे हम और गहराई से इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ अल्लाह ने उनकी नीयत खोल कर रख दी। इबादत सिर्फ सर झुकाने का नाम नहीं है, इबादत नाम है खालिस होने का। वो सरदार अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ में 360 बुतों को भी पूजते थे। इसलिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कहलाया कि ए काफिरों, तुम जो सौदा करने आए हो ये इबादत नहीं, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। मेरे रब को वो सजदा चाहिए ही नहीं जिसमें शिर्क की मिलावट हो। इसलिए जब तक तुम बूतों को नहीं छोड़ते तुम मेरे रब के इबादत गुजार नहीं कहला सकते। यानी उनका ये दांव भी खाली गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टूक बता दिया कि तुम्हारे सजदों में दुनियादारी और मिलावट है, जबकि मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रब की रजा के लिए झुकता हूँ, इसलिए हमारा और तुम्हारा रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन उन सरदारों के दिल में अभी भी एक चोर बाकी था। उन्होंने सोचा घबराओ मत, इसने अभी जो ना कहा है वो तो सिर्फ आज के लिए है। हो सकता है कल इसका गुस्सा ठंडा हो जाए, हो सकता है मुस्तकबिल में हालात बदल जाएं और ये मान जाए। आखिर हमेशा के लिए तो इनकार नहीं किया ना। उनकी इस आखिरी उम्मीद को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अगली आयत नाजिल की, वला अना अबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बात तो दूसरी आयत में भी आ चुकी है, तो दोबारा क्यों कही गई? इसे हम और गहराई से इस तरह समझ सकते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ने जमाना हाल की बात की थी कि मैं अभी नहीं झुकूंगा, लेकिन यहाँ अल्लाह ने जमाना मुस्तकबिल का जिक्र किया है। यहाँ अरबी का लफ्ज आबिदुम आया है जो किसी काम को नहीं बल्कि इंसान की पहचान को दिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को साफ कर दिया कि तुम कल या परसों की उम्मीद मत रखना। ये बुत परस्ती मेरी फितरत ही नहीं है। मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो पत्थरों के आगे सर झुकाए। इस आयत ने उनकी उम्मीद की आखिरी डोर भी काट दी। साफ कह दिया गया, ना मैं आज तैयार हूं और ना कयामत तक कभी तैयार होऊंगा। ये मुसालहत कभी मुमकिन ही नहीं है। अब यहाँ एक अजीब बात होती है, अल्लाह ने फिर से वही आयत दोहराई जो तीसरी आयत थी, वला अंतुम आबिदूना मा अबूद, और ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ कोई भी सोचने पर मजबूर हो सकता है कि ये बात दोबारा क्यों कही गई। इसे हम और गहराई से इस तरह समझ सकते हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ने उनके आज की बात की थी कि तुम्हारी इबादत में मिलावट है, लेकिन ये पांचवी आयत उनके आने वाले कल के बारे में एक पेशन गोई थी। अल्लाह आलिमुल गैब यानी छुपी हुई बातों को जानने वाला है। वो जानता था कि इन सरदारों के दिलों पर मोहर लग चुकी है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया कि आप इनकी फिक्र न करें, ये वो बदनसीब लोग हैं जो कभी ईमान नहीं लाएंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये कभी नहीं बदलेंगे। और तारीख गवाह है दोस्तों, ये बात अटल साबित हुई। अगर इन चार सरदारों में से एक भी झूठ मूठ का मुसलमान बन जाता तो कुरान की ये आयत गलत साबित हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वलीद बिन मुगीरा हो या आस बिन वाइल, ये सब के सब कुफ्र के हालत में ही मरे। इस आयत ने साबित कर दिया कि कुरान इंसान का कलाम नहीं बल्कि उसका कलाम है जो दिलों का हाल जानता है। जब हाल और मुस्तकबिल दोनों के दरवाजे बंद हो गए तो आखिर में अल्लाह ने वो हतमी फैसला सुनाया जो कयामत तक के लिए एक उसूल बन गया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये कुरान की सबसे मशहूर आयतों में से एक है, लेकिन अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। इसे हम और गहराई से इस तरह समझ सकते हैं, ये आयत कोई सुलह सफाई नहीं थी कि तुम भी ठीक हो और हम भी ठीक हैं। चलो, कम से कम इसने ये तो कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मतलब अब झगड़ा खत्म। शायद ये मान गया है कि हम भी अपनी जगह ठीक हैं और वो भी अपनी जगह ठीक है। ये तो सुलह है ना? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये कोई सुलह नहीं है, ये अलगाव है। उसने ये नहीं कहा कि हम ठीक हैं,
उसने कह दिया है कि तुम और तुम्हारा ये झूठा दीन मुझे गवारा नहीं, तुम जहन्नम के रास्ते पर खुश रहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दो टूक कह दिया, अगर तुम हक को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम अपने बातिल रास्ते पर खुश रहो और मैं अपने हक रास्ते पर कायम हूं। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई लेन देन नहीं हो सकता, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे साथ और मेरा अंजाम मेरे साथ। उस दिन मक्का के वो बड़े बड़े सरदार जो दौलत और ताकत के नशे में आए थे, वो कुरान की इस छोटी सी सूरह के आगे हार गए। वो नबी को झुकाने आए थे लेकिन खुद जलील होकर लौटे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान दुनिया के सारे सोने चांदी से भी ज्यादा भारी है। दोस्तों, ये सूरह सिर्फ उन काफिरों को जवाब देने के लिए नहीं थी, बल्कि ये हम सब के लिए अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छोटी सी सूरह से कितनी मोहब्बत करते थे। हदीस शरीफ में आता है कि सूरह अल काफिरून का दर्जा कुरान के चौथाई हिस्से के बराबर है, यानी इसे एक बार पढ़ने पर चौथाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। लेकिन इसकी असली ताकत कुछ और है। एक बार एक सहाबी हजरत फरवा बिन नौफल रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दीजिए जिसे मैं सोते वक्त पढ़ा करूं। तो जानते हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या अता फरमाया? आपने फरमाया, जब बिस्तर पर जाओ तो कुल या अय्युहल काफिरून पढ़कर सोया करो, क्योंकि ये शिर्क से बरात यानी छुटकारा है। जरा सोचिए, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, और ये सूरह हमें उसी सबसे बड़े गुनाह से बचाती है। जब आप रात को ये पढ़कर सोते हैं तो आप अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर आज रात मेरी मौत आ जाए तो गवाह रहना, मैं सिर्फ तेरा हूं, मेरा शिर्क से कोई वास्ता नहीं। ये वो इत्मीनान है जो एक मोमिन को सुकून की नींद देता है। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फजर और मगरिब की सुन्नतों में एक रकात में सूरह इखलास और दूसरी में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे, ताकि दिन की शुरुआत भी तौहीद के साथ हो और दिन का इख्तिताम भी तौहीद पर हो। तो ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये हमारे ईमान की हिफाजत का मजबूत जरिया है। आइए अब देखते हैं कि आज के दौर में हम इस सूरह से क्या सबक ले सकते हैं। दोस्तों, मक्का के वो सरदार तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी वो सोच आज भी जिंदा है। आज भी हमारे सामने ऐसे हालात आते हैं जब दुनिया हमसे कहती है, अरे थोड़ा सा समझौता कर लो, थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है, थोड़ा सा हराम कमा लेने में क्या नुकसान है, दीन अपनी जगह है, दुनिया अपनी जगह। अरे जैद, इतना क्यों डर रहे हो? बस इस पुराने और खराब अनाज को नए अनाज के नीचे छुपा दो, ग्राहक को ऊपर ऊपर से अच्छा दिखेगा और तुम्हारा मुनाफा डबल हो जाएगा। इसमें हर्ज ही क्या है, सब यही करते हैं। ये तो धोखा है, झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा घर ले जाना, ये मेरे जमीर को गवारा नहीं। अरे सुन, दीन अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। अगर बाजार में टिकना है तो थोड़ा समझौता करना सीखो। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा कोई लम्हा आए जब दुनिया की दौलत एक तरफ हो और अल्लाह का हुक्म दूसरी तरफ, तो याद करना इस सूरह को, याद करना कि कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सारी दौलत और सरदारी को ठोकर मार दी थी, लेकिन हक का सौदा नहीं किया। सूरह अल काफिरून हमें सिखाती है कि मुसलमान किसी से नफरत नहीं करता, वो सबके साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन जब बात ईमान की आती है तो वो चट्टान बन जाता है, वो दो कश्तियों का सवार नहीं बनता। उसका जवाब वही होता है जो अल्लाह ने सिखाया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। आइए आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले अपने रब को मना लेते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ आमीन कहिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बहुत कमजोर बंदे हैं, कदम कदम पर फिसल जाते हैं। या अल्लाह, हमें हर तरह के शिर्क से अपनी पनाह में रख, चाहे वो खुला शिर्क हो या दिलों में छुपा हुआ दिखावा। ऐ हमारे रब, हमारे ईमान को पत्थर की तरह मजबूत कर दे। हमें वो हिम्मत दे कि जब दुनिया हमें समझौता करने पर मजबूर करे तो हम सिर्फ तेरा रास्ता चुनें, हमारे दिलों को बातिल से फेर कर सिर्फ अपने लिए खालिस कर लें, और जब हमारी मौत आए तो हमारी पेशानी पर सजदा हो और जुबान पर सिर्फ तेरी तौहीद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।
इस दुआ की कबूलियत और अपने ईमान की सलामती के लिए कमेंट में अपने दिल की गहराइयों से आमीन या अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो दीन और दुनिया की कश्मकश में फंसे हैं। शायद आपका एक शेयर उन्हें सही रास्ता दिखा दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।